Hello students, let us do today the remaining questions of the chapter surface areas and volumes. We will do the remaining question number 6, 7, 8, 9, because we have done up to question number 5 in the last video. So let us start question number 6 here, and in question number 6, question is how many silver coins of coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. So according to the question, it is given that the dimension of coins, it is said that the diameter of silver coin is 1.75 and thickness is 2 mm, 2 millimeter. So let us conclude the things here. What is given? Given the diameter for silver coins. The things which are given, diameter equal to 1.75 centimeter and thickness 2 millimeter. So diameters, we can change the diameter into radius. So therefore radius equal to 1.75 by 2. Make it more simple by removing the point decimal sign from here. Decimal is after 2 digits, so 2 into 100. But let us solve this. Let us make it simple. Just cross by 5. 5 3s are 15. 5 5s are 25. 5 20. Again by 5. 5 4s are 20 and 5 7s are. So it is 7 by 8 centimeter. So the radius is 7 by 8 centimeter. Also given the thickness. Thickness will be taken as the height. Thickness, you can say that this is the height, and this one is 2 mm. Just see here, this number is in centimeter and this one is millimeter. Let us make this also in centimeter. So it will be divided by 10. So thickness is 2 by 10 centimeter. For the silver coins, we have the radius and we have the height. Okay. And what is there for cuboid? The dimension of cuboid is given. Okay. So dimension of cuboid is also given. But let us finish this at first. सिल्वर कॉइन का हम लोग हमारे पास में रेडियस है, हमारे पास थिकनेस है, तो वॉल्यूम निकालते हैं. तो therefore volume of silver coin formula pi r square h. 22 by 7, r is 7 by 8, this is also 7 by 8 and this is 2 by 10. Okay, कैंसिल आउट करें जहां तक हो सकता है. 7 7 कैंसिल, 2 4 are 8, 2 1 are 2. Also this can be cancelled out by 11 and this one is 2. अब कोई नंबर क्रॉस नहीं होता, so we will write 11 into 7. 11 and 7 upon 8 into 2 into 10. तो सिल्वर कॉइन को यहीं तक छोड़ते हैं और आगे चलते हैं. हम लोग क्रॉस करना चाहें तो क्रॉस तो अब होगा नहीं, तो यहीं छोड़ दें. अब दूसरा पार्ट में हमारा है क्यूबॉइड. फॉर क्यूबॉइड की लेंथ डायमेंशन दिया है, तो लेंथ इज 5.5, ब्रीथ इज 10 centimeter and height is 3.5 centimeter. So you know that we can find the volume from here.
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इसके पॉइंट्स को हटाएं तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ भी 10, 10 कैंसिल कर दें तो 55/10 इंटू 35। ओके, और कैंसिल हो सकता है 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा। अब नहीं होगा तो आया 55 इंटू 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें फाइंड करना था कि कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनेगा। सिल्वर कॉइन्स कितने लगेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो इसका है 55 इंटू 7/2। ओके, और इसका है 11/8 इंटू 7/2 इंटू 10। तो ये फिगर है हमारे पास 11 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 10। ओके, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने में 55 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10, और नीचे आएगा 2 इंटू 11 इंटू 7, नो, 8 इंटू 2 इंटू 10, 8 इंटू 2 इंटू 10, नीचे होगा 2 इंटू 11 इंटू 7। अब इसको क्रॉस करें, 7 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 5 जा 55, तो 5 8 जा 40, 40 10 जा 400। तो 400 कॉइन्स इसमें लगे। कितने कॉइन्स लगेंगे? 400। क्या किया हम लोगों ने जो दिया था, पहले सिल्वर कॉइन्स की वॉल्यूम निकाला और फिर वॉल्यूम निकाला क्यूबॉइड का, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए। नो मैटर कि आप इस तरह से सॉल्व करें, आप दो लाइन में भी इसको क्रॉस कर सकते हो। इस फॉर्मूले में डाल के सारे नंबर्स को इकट्ठा डालेंगे, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने अलग अलग किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ 32 सेंटीमीटर विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, इट मीन्स कि एक सिलेंडर है और उसका हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस, बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विथ सैंड, उसमें सैंड भरा है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इस पूरे बकेट को खाली कर दिया गया जमीन पे, ग्राउंड पे, तो एक कोन का शेप बन गया। अब बताना है इफ द हाइट ऑफ द हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट। तो हाइट है कोन का 24 सेंटीमीटर, रेडियस और स्लेंट हाइट बताना है हीप का। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 को। This is question number 7 for you, and in this question the things which are given is a cylindrical bucket and then a heap of coal. This is question number 7. So let us see for cylindrical bucket. Bucket is the shape of bucket is here in the shape of a cylinder, and the information is given about कि height is 32 centimeter and radius is 18 centimeter. Okay, so height and radius, let us
this make this height is h, radius is r. Okay, and for conical hip the information we have, जो information हमारे पास है, and that is the height. Height equal to, इस height को h1 ले लें तो height equal to what? Height equal to 24 centimeter. We have to find out radius and slant height. तो r1 is not known and l is not known. ये चीजें हमको पता करना है. तो लेट अस स्टार्ट. देखो ऐसे केस में क्या होगा, जो बकेट में सैंड था उसको जमीन पे खाली किया, तो जितना वॉल्यूम बकेट का होगा उतना ही जो हीप बना है उसका होगा. तो लेट अस सॉल्व दोनों के वॉल्यूम को इक्वल. कुछ फिगर आप बना सकते हो, एक सिलेंडर और एक कोन. तो हम क्वेश्चन में चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट. ओके, कोनिकल हिप का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन हम लोगों ने r को r1 लिखा है, h को h1 लिखा है, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर h. तो पाई पाई कैंसिल कर दे आप. r1 is not known to us, h1 is known to us, that is 24, r 32 and h is 32. r फर्स्ट लिखिए, ऑल्दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 18 इंटू 18 इंटू 32, इसको सॉल्व करना है हमें. तो पहले सॉल्व करें तो ये 3 8 जा 24, तो ये बन गया r1 कर दो. 8r1 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32. तो ये r1 स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लेते हैं इधर, तो r1 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8. ओके, तो 8 4 जा 32. r1 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4. सो r1 इक्वल टू रूट ओवर 18 इंटू 18. 4 को ब्रेक कर दें तो 2 इंटू 2. r1 इक्वल टू 2 18 का पेयर है और 2 2 का पेयर है, तो एक 2 बाहर एक 18. तो r1 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. Second part is find out the L. Formula to find out L is r square plus h square. So r is here 36 and h is 24. So L equal to 1296 most probably, and this is 576. 6 6 12 9 7 16 117 and 1872. After making the factor of 1872, you will get you can get the factors somewhere. Two into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13. तो इसका 1827 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा. ओके, अब इससे जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर होगा, तो 2 into 2 into 3 and root 13. So 2 2 जा 4 3 जा 12
तो दिस इज द स्लैंट हाइट एल। एल की वैल्यू 12√13 सेंटीमीटर और आर जो था R1 वो 36 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है कि वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। कैनल में पानी बह रहा है और उस कैनल की विड्थ जो है 6 मीटर है और उसकी जो डेप्थ है 1.5। कीप इन माइंड दैट डेप्थ एंड हाइट इन द मैथमेटिक्स इज सेम। फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो पानी बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बह रहा है। क्वेश्चन है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर फील्ड में खेत में 8 सेंटीमीटर पानी लगा हो, मतलब 8 सेंटीमीटर की पानी रहनी चाहिए खेत के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा वाटर का, जो पानी का वो वॉल्यूम जो इसमें 30 मिनट्स में बहेगा। कहाँ पे बहेगा? कैनल में। कैनल का शेप क्या होता है? क्यूबॉइड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट्स में कितना होगा कैनल के अंदर जो बहेगा, ये हम लोग पहले निकालेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट एट फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन द कैनल इन हाफ एन आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो कैनल का लिए दिया हुआ है, विड्थ दिया है, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू 6 मीटर, डेप्थ दिया है 1.5 मीटर। इस विड्थ को आप ब्रेथ भी ले सकते हो B, और ये हाइट का काम करता है। अब हमको लेंथ चाहिए पानी का, लेंथ ऑफ वाटर। पानी जो बहता है कैनल के अंदर 30 मिनट में, पहले स्पीड दिया तो चलो पहले स्पीड लिखे। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ये स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक यस 10 किलोमीटर पर आवर। हाफ एन आवर का करना है हमको कैलकुलेशन, तो हम निकालेंगे कि लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन कैनल इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना पानी बहेगा? ऑब्वियसली स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट इज द हाफ एन आवर। तो इफ अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी फ्लो होता है तो हाफ एन आवर में कितना फ्लो होगा? 5 किलोमीटर, जस्ट उसका हाफ। तो इक्वल टू 10/2, दैट इज 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दे तो 5000 मीटर। 5000 मीटर पानी बहेगा। ओके, अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। पानी जितना बहेगा हाफ एन आवर में, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन कैनल इन हाफ आवर या 30 मिनट्स। ये तो लेंथ था, अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो लेंथ 5000, ब्रेथ था 6, हाइट था 1.5, ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। तो हाफ एन आवर में 45,000 मीटर क्यूब पानी जो है फ्लो होगा कैनल के अंदर। क्वेश्चन ये है कि बताना है कि हाफ एन आवर में कितना एरिया इरिगेट होगा अगर इफ 8 सेंटीमीटर पानी खेत में लगा होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इरिगेशन एट सेंटीमीटर वाटर
स्टैंडिंग वाटर तो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर जरूरी है, तो कितना एरिया इरीगेट होगा, दैट इज 45,000 अपॉन 8 अपॉन 100, तो 45,000 इंटू 8 सॉरी इंटू 100 अपॉन 8। ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज किया गया। सॉल्व करें, क्रॉस होगा 4 2 ज़ा और 4 25 222500। इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 5625 और 00 होना चाहिए। तो कैलकुलेशन इज 562500 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में आया है, इसको अगर हमें चेंज करना है हेक्टेयर में तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू 562500 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ऑल्दो क्वेश्चन में हेक्टेयर्स नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोगों ने पहले वॉल्यूम निकाला, कैनल का। कैनल में जो पानी बहेगा 30 मिनट्स में, उसकी वॉल्यूम निकाला तो ये आया। और इस 30 मिनट के पानी को 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर खेतों में चाहिए, तो उससे डिवाइड कर दिया, एंड दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field। एक फार्मर जो है वो अपने वो एक पाइप को कनेक्ट करती है। कहाँ से कनेक्ट करती है? कैनल से, और अपने फील्ड के अंदर जहाँ पे एक टैंक है। तो कैनल से वो जो उसका पाइप है, पाइप सिलिंड्रिकल शेप ही होता है। सपोज करो कि ये पाइप है, सिलेंडर ही होगा। ये कैनल से कनेक्ट किया, और इसका जो पानी है, इसके जो पानी है वो जा रहा है एक सिलिंड्रिकल टैंक पे, कुछ ऐसा। क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में ये टैंक भर जाएगा, ये वाला टैंक कितनी देर में भरेगा। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। एट फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में है। ओके, देखते हैं क्या क्या दिया। सबसे पहले लेंगे हम लोग पाइप का। तो फॉर पाइप, सिलेंडर का शेप का है, तो फॉर सिलिंड्रिकल पाइप, इसके लिए क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास है डायमीटर, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हमारा होगा, इसका हाफ, डायमीटर का हाफ होता है, तो 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 10/100 दैट इज 1/10 मीटर। तो ये रेडियस हुआ 1/10 मीटर। अब इसके अलावा इसमें जो दिया है कि वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो पानी की लेंथ क्या होगी या हाइट? तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, पहले स्पीड लिखें
speed of water equal to 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो स्पीड ऑफ वाटर है, इसको हम 3000 मीटर पर आवर भी लिख सकते हैं. अब हम लोग लेंथ निकालें. लेंथ ऑफ वाटर ये 3000 मीटर. पानी जो 1 घंटा में बहेगा उसकी जो लेंथ है वो 3000 मीटर है. अब हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम. वॉल्यूम पानी 1 घंटे में इस पाइप के अंदर 1 घंटे में जो पानी बहेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन 1 आवर, वो होगा पाई आर स्क्वायर में हम जाएंगे. पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 3000 इक्वल टू 30 पाई मीटर क्यूब. 30 पाई मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम इस पाइप का. इस पाइप में जो पानी बहेगा 1 घंटे के अंदर उसकी वॉल्यूम इतना होगा. अब हम लोग इसकी वॉल्यूम निकालें. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक तो इसका तो डायमीटर जो था वो था 20 सेंटीमीटर और इसकी ये जो लेंथ हम लोगों ने निकाला था, इसमें जो दिया हुआ है इसका डायमीटर है 10 मीटर डायमीटर है, 2 मीटर डीप है. तो डायमीटर ज़्यादा है, ये 2 मीटर डीप है और डायमीटर है 10 मीटर. ओके, तो डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 कर दें. लिखेंगे डायमीटर ऑफ cylindrical tank equal to 10 meter, therefore radius equal to 10/2 equal to 5 मीटर. तो रेडियस है 5 मीटर और इसकी जो डेप्थ है या हाइट है वो है 2 मीटर. Now for this question we have to find out the volume of cylindrical tank. So once we have the radius and depth, that is height, we can find out the volume. So volume of cylindrical tank, you know the formula, pi r square h. So pi into r is 5 into 5 into 2 and it will give 5 5 so 25 to 50 pi meter cube. But we have to find out the time. Okay, so required time, just divide the volumes. Required time equal to 50 pi upon 30 pi. Pi cancel and 5/3 hours. If you want to convert this time into the minutes, then you can write like this: if 5/3 into 60, and it will gives you 100 minutes as the answer. Okay, this is all for the chapter number 13. Thank you.